Welcome students in biology class. In previous video we described about the competent host. There are two processes. One is the DNA mediated gene transfer, another is the direct or vectorless gene transfer. Today we discuss a very important topic, that is the process of recombinant DNA technology. Okay. Why we take this topic? Because through this topic we know about them. What is the process that is occur in case of recombinant DNA technology? How can we transfer or manipulate the gene? Okay. So we start the today topic, that is the process of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology involve the following steps. There are 5 to 6 steps that is occur in case of recombinant DNA technology. First one, that is the isolation of the genetic material DNA. आइसोलेट करना जेनेटिक मटेरियल को, जैसे एक न्यूक्लिक एसिड्स इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. सभी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, वो न्यूक्लिक एसिड है. इट इज़ द डीएनए मेजोरिटी ऑर्गेनिजम्स, या मैक्सिमम क्या होता है, डीएनए ही होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में. फॉर कटिंग द डीएनए विथ restriction enzymes, it needs to be pure and free from other macromolecules. Okay, because the DNA is covered by the membrane, it has to break the cell open to release DNA, other macromolecules like RNA, protein, polysaccharides and lipids. This often by treating the bacterial cell, plants, animal tissue with the enzymes such as lysozymes, बैक्टीरिया के लिए, cellulase plant के लिए, and chitinase for the fungus. We also discussed about the in previous video. तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आइसोलेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज़ करते हैं, बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, दे आर कवर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन. उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज़ करते हैं. क्लियर. सेकेंड वन, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन. That is used for the cutting of DNA by the restriction enzymes. Agarose gel electrophoresis is used to check the progress of restriction enzyme digestion. Since DNA is the negatively charged molecules, is moves toward the positive electrodes, means anodes. This process is also repeated with the vector. वेक्टर के साथ भी यही प्रोसेस होता है. कट करने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मेशन करते हैं रिकम्बिनेंट का. आफ्टर द कटिंग द सोर्स ऑफ डीएनए एंड द वेक्टर डीएनए विथ ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, द कट आउट जीन of interest from the source DNA and the cut vector with the space are mixed and ligase enzyme is added. ठीक है, तो सोर्स से कट करते हैं और जो फॉरेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसको भी कट करते हैं और लाइगेज एंजाइम के साथ उसको जोड़ देते हैं. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड डीएनए कह सकते हो उसको. दैट इज क्लियर. थर्ड वन इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन of inserted using PCR. तो ये PCR about we discussed about the PCR in previous video, polymerase chain reactions. This was first discovered by the Caris Mullis. Okay, PCR क्या होता है, PCR is the best defined as the DNA replication in vitro conditions. That is clear. Okay, just like you see here is a PCR. From one DNA strand we find the 2 DNA strands. ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डिनेचुरेशन, एनलिंग एंड एक्सटेंशन. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इंजाइम एज वेल एज द टेम्परेचर इज वेरी रिक्वायर्ड.
एट हायर टेम्परेचर मीन्स 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड डीनेचरिंग होता है, मीन्स वो डीएनए स्ट्रैंड्स आर डीनेचर्ड, ठीक है, ब्रेक कर जाता है. देन दैट इज द एनलिंग प्रोसेस. हियर इज द प्राइमर आर यूज एट द टेम्परेचर इज 45 to 65. इस बीच पर यहाँ प्राइमर 3 प्राइम एंड से अटैच्ड होता है. दैट इज सिंथेसाइज द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड्स. ये टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, उसके अगेंस्ट न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ. अब एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गए. दैट इज क्लियर. ये आपका पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आइए. That is the process of recombinant DNA technology. That is the fourth point. Is the preparation and insertion of recombinant DNA into the host cell organelles. ठीक है, इसको क्या करता है, द वेक्टर डीएनए मीन्स प्लाज्मिड एंड एलएन मीन्स फॉरेन डीएनए कैरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट आर कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू प्रोड्यूस कंप्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स. दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम द कंप्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स ऑफ द 2 डीएनए are joined to produce a recombinant DNA. That is clear? Okay. Next point, that is the obtaining the foreign gene product. When recombinant DNA is the transferred into the bacterial or plant or animal cell, the foreign DNA is multiplied. ठीक है, जब उसके साथ अटैच हो जाता है तो मल्टीप्लाई करता है. मोस्ट ऑफ द रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आर एम टू प्रोड्यूस अ डिजराइबल प्रोटीन्स. ठीक है, डिजराइबल प्रोटीन का ये फॉर्म करता है. सो इज ए नीड फॉर द एक्सप्रेशन रिकम्बिनेंट डीएनए. आफ्टर द क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट वन हैज टू मेंटेन द ऑप्टिमम कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन्स एंड कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन ए लार्ज स्केल. ठीक है, और इसका क्लोनिंग फॉर्मेशन करता है और लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है. इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोलोगस होस्ट इट इज़ नोन एज द रिकम्बिनेंट प्रोटीन. इसको हम रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस. This is the last steps before we discuss about the downstream processes. जो recombinant proteins हैं which are formed, the culture may be used by the extracting and purifying the desired protein. The cells can be also multiply in the continuous culture system where the used medium is passed out from one side and fresh medium added from the other side to maintain the cells their physiologically most active exponential phase rapid multiplication of cell. This type of culturing methods produces a large biomass of get higher yields of desired protein. इसके थ्रू हायर अमाउंट में desired protein हम ऑब्टेन कर सकते हैं. बायोरिएक्टर मीन्स फर्मेंटर्स. ये क्या होता है, बायोरिएक्टर्स आर कंसिडर एज द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल जो बायोलॉजिकल जो मटेरियल है दैट इज़ यूज फॉर द बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स एंड देयर एंजाइम्स. ओके. Small volume culture cannot give large quantity of the products. Large scale production is 100 to 1000 liter of the product is carried out in bioreactors. That is clear. A bioreactor provides the optimal condition for obtaining the desired product by providing
optimum growth conditions such as temperature, pH, substrate, vitamins, oxygen and salt. This is the very necessary component for the bioreactor, and this component that is asked in the in board examination as well as the competitive examinations. ओके, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. और बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन सच एज क्या चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द बायोरिएक्टर, it undergoes through some processes before a finished product to be the ready for marketing. The process includes separation and purification of product, which are collectively called downstream processing. The downstream processing क्या होता है? Separation and purification of product which are obtained from the bioreactors. So this is the 6 steps that is occur in case of biotechnology process. That is clear. In recombinant DNA technologies, ठीक है, 3 steps थे. Just like insertion of recombinant DNA into the host cell, just like you see here, this is the foreign genetic material, a plasmid है, that is use the restriction into nuclease enzymes, दोनों में यूज़ किया गया. They cut the specific sites, ठीक है. अब इसको जो कट किया गया है फॉरेन डीएनए को, उसको हम प्लाज्मिक वेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं. यहाँ पर किसके थ्रू अटैच होता है? लाइगेज एंजाइम के द्वारा, ठीक. अब इसको इंसर्ट करते हैं इकोलाई बैक्टीरिया में, जहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन करता है और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन्स. ये भी उसी का स्टेप्स है, ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी का यूज है. इसमें क्या है? इसमें आपका डोनर सेल है और ये आपका बैक्टीरियल सेल्स है, ठीक है. देयर इज अ प्लाज्मिड आर प्रेजेंट एंड दिस द न्यूक्लियोइड्स. बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है. और इसका ये न्यूक्लियस है होस्ट सेल का, डोनर सेल का. इसको फॉरेन डीएनए ऑब्टेन करते हैं, इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉरेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है. ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है. अब क्या करते हैं? दोनों में दैट इज यूज द इको R1. ये स्टैंड हो गया, इको R1 यूज़ करते हैं दोनों को. दैट इज कट ए स्पेसिफिक पॉइंट, ए स्टिकी पॉइंट कट कर रहा है, यू सी हियर, ठीक है. आपको दिख रहा होगा ये स्टिकी पॉइंट कट कर रहा है, ठीक. दैट इज द एनलिंग बाय लाइगेशन, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो कट हुआ स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड्स, इसको प्लाज्मिड डीएनए से अटैच कर दिया गया. दैट इज क्लियर. दिस द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए. अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया. दिस द रिकम्बिनेंट डीएनए. देन प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरियल सेल, जिसमें बैक्टीरिया सेल है जिसमें केवल प्लाज्मिड हो, ठीक है. बैक्टीरियल है, प्लाज्मिड सेल है जिसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए है ये, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए यूजिंग ए कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है. कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए विद द किसमें? प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरियल सेल, ठीक है. इसमें इंसर्ट कर देते हैं रिकम्बिनेंट होस्ट बैक्टीरियल डीएनए. ये आपका आ गया रिकम्बिनेंट डीएनए. इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, एक से कई बन गए हैं आपको, ठीक है. क्लोन्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल. क्लोन ऑफ द इंजीनियर्ड बैक्टीरिया इन ए फर्मेंटर कंटेनिंग मीडियम्स, ठीक है. देन रिकम्बिनेंट प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस. देन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन करने के बाद मार्केटिंग के लिए इसको हम प्रोडक्ट को बाजार में उतार देते हैं. दिस द प्रोसेस. दैट इज क्लियर.
ओके, नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर के बारे में भी बात कर रहे थे। दैट इज यूज फॉर द इंक्रीज द रैपिडली नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। क्लोनिंग जो सबस्टांस है उसके प्रोडक्ट को नंबर बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो बायोरिएक्टर के लिए क्या मेन रिक्वायर्ड है, वी आल्सो डिस्कस अबाउट देम। अगेन वी डिस्क्राइब हियर दिस द मेन ऑप्टिमल कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस सच एज टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, पीएच होना चाहिए, सबस्ट्रेट, विटामिन्स, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट। अब टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर की बात करें तो देर आर द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर द स्टीयरिंग टाइप्स। स्टीयरिंग टाइप मैक्सिमम यूज किया जाता है। एंड स्टीयरिंग टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर आर टू टाइप, वन इज द सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड सेकंड इज द स्पर्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दिस इज द सिंपल एंड दिस इज द स्पर्ज्ड bioreactors. Okay, you see in the diagram, in the spursed stir tank bioreactor, sterile air bubbles are spursed. Sterile air bubbles are spursed. This the surface area of oxygen transfer is increased, और इसके जो ऑक्सीजन एरिया का ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज कर जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, बायोरिएक्टर में होता क्या है? द फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्न न्यू मटेरियल सच एज ग्लूकोज इनटू द प्रोडक्ट सच एज एल्कोहल। ठीक है, मीन्स फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो रॉ मटेरियल है वह न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन एग्जांपल इज ग्लूकोज into the product such as they convert into the alcohol. The term fermentation was originally applied to the anaerobic process, और ये नॉर्मली कहाँ होता है? anaerobic process में होता है, but is now used more broadly to include all process whether aerobic and anaerobic। और लेकिन अब यह broadly यूज़ किया जाता है, aerobic and anaerobic दोनों कंडीशन में यूज़ करते हैं। All operations are carried out under the sterile conditions to avoid contamination of culture। ठीक है, sterile condition में यूज़ किया जाता है, विदाउट कंटेमिनेशन, कोई कंटेमिनेशन इसमें ना हो प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज आइदर द सेल themselves और some useful cell product। Two basic type of fermentation are possible. These are batch fermentation and second one is the continuous fermentation. What is the batch fermentation? In batch fermentation, the nutrient and microorganisms are put in a closed reactor and not changed from outside once the fermentation starts. For example, no more nutrient are added when nutrients are utilized. The product is separated from microorganisms in continuous fermentation। सेकेंड में जो है आपका इन continuous fermentation, nutrients are replaced as fast as they are used and product are removed as fast as they are made। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनता था रॉ मटेरियल उसमें डालते जाते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रोसेस था बैच फर्मेंटेशन में उसमें कल ओनली वन टाइम्स जो न्यूट्रिएंट डाल दिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है ओनली वंस टाइम उसमें फॉर्मेशन होगा, उसमें तुरंत ऐड नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। दिस इज द बायोरिएक्टर एंड फर्मेंटेशन दैट इज अगर इनसाइड द बायोरिएक्टर्स। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक्स।